ہم اس دن کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، اور جب سے خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے اس وقت سے لے کر کلیسیائیں اسی طرح سے اب تک خداوند کے نام کو جلال دیتی آئی ہے اور خداوند کی تعریف کرتی ہیں اور خوشی سے خداوند کے گھر میں جمع ہوتی ہیں، عبادت کرتی ہیں، اور جب تک دنیا ہے رہے گا نام سدا دیگر۔ تو آج کے دن میرا دل شکر گزاری سے بھرا ہے آپ سب کے لیے کہ آپ خدا کے گھر میں آئے اور آپ نے آ کر اس بات کا ثبوت دیا کہ آپ یسوع مسیح کے ماننے والے لوگ ہیں اور خدا سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ آج کا مضمون جو ہے وہ بہت ہی دلچسپ اور اہم ہے، خاص ہے ہمارے لیے، نہ صرف ہمارے لیے بلکہ پوری دنیا کے مسیحوں کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے لیے یہ مضمون بہت ہی خاص ہے۔ یسوع مسیح نے کہا تھا تم دنیا کے نور ہو اور تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے۔ تو ہم اس دنیا میں یسوع مسیح کا نور ہے، چراغ ہے، روشنی ہے، تاکہ اوروں کو رہنمائی کر کے ہم یسوع تک لا سکیں۔ لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے جب کسی دوست سے، کسی عزیز سے ملتے ہیں تو ملنے کے بعد جب ملاقات ہوتی ہے تو اس ملاقات میں چند ایک باتیں ہوتی ہیں، آپ کا نام کیا ہے، ہم بتاتے ہیں نام یہ ہے، اور جب نام بتایا جاتا ہے تو کئی بار ہمارے لوگوں کے ساتھ مسیح کا نام لیا جاتا ہے، جیسے انور مسیح، جوید مسیح، ندیم مسیح۔ تو اس سے تو ایک دم پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کون ہیں، جی مسیحی ہیں۔ سننے والا نام سے سن کر کہتا ہے اچھا آپ مسیحی ہیں۔ تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد پھر اگلا سلسلہ شروع ہوتا ہے سوالات کا کہ بائبل بدل گئی ہے، یسوع خدا کا بیٹا آپ کہتے ہیں، کیسے کہتے ہیں، یہ تو کفر ہے۔ لیکن آج اس سلسلہ تعلیم کو میں شروع کرنا چاہتا ہوں تاکہ نہ صرف ہم اس سے واقف ہوں اور دلیری کے ساتھ بیان کر سکیں، بلکہ جو بھی ہمارے سامنے آئے سننے والے ہمارے وسیلہ سے سچائی سے واقف ہو۔ کلام میں لکھا ہے سچائی سے واقف ہو گئے، سچائی تمہیں کیا کرے گی؟ آزاد کرے گی۔ تو جب تک ہم خود نہیں واقف ہوں گے ہم اوروں کو بتا نہیں سکتے۔ تو آج اس موضوع پر جو بہت ہی خاص موضوع ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے۔ ہمارا تو ایمان ہے، ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے ہم ایمان رکھتے ہیں، لیکن جب کسی کو ثابت کرنا ہوتا ہے تو پھر کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں لینی ہوتی ہیں۔ تو ہم آہستہ آہستہ سیکھیں گے، اور میں چاہوں گا کہ وہ لوگ جن کے پاس بائبل مقدس ہے وہ میری مدد کریں تاکہ ہم سب مل کر اس میں شریک ہو سکیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر سارے حوالے میں ہی پڑھنا شروع کر دوں گا تو کیا ہوگا، ہو سکتا ہے وقت زیادہ لگے۔ تو اس لیے آپ میری مدد کریں، اور میں آپ سے ریکویسٹ بھی کروں گا کہ آج کے بعد اگر آپ پڑھے لکھے ہیں تو بائبل ضرور لے کر آئیں تاکہ ہم شریک ہو سکیں اور خدا کے کلام کو پڑھ سکیں۔ تو سب سے پہلے جب کوئی ہم سے سوال کرے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے تو ہم اسے پروف کے طور پر، ثبوت کے طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نہیں کہتے بلکہ خدا کا کلام کہتا ہے۔ کون کہتا ہے؟ خدا کا کلام کہتا ہے، اور کلام میں سے اس کو جب ہم پڑھائیں گے، حوالے دیں گے تو وہ ضرور اس بات کو قبول کرے گا۔ ہمارے پاس یہ کتاب مقدس ہے جو ثبوت ہے، اس کے بارے میں لکھا ہے ہر ایک صحیفہ خدا کے الہام سے ہے،
इल्हाम क्या है? खुदा का सांस, खुदा की आवाज, खुदा का कलाम। और ये कलाम ऐसा है कि यीशु ने कहा था आसमान और जमीन टल सकते हैं लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज ना टलेंगी। ये कलाम शहादत देता है कि यीशु खुदा का क्या है जी? बेटा है। इस कलाम में दो ऐतनामे हैं, पुराना ऐतनामा और नया ऐतनामा। हम नए ऐतनामा से प्रूव करने की कोशिश करेंगे जिसको आम अल्फाज में अंजील कहते हैं। अंजील में से हवाला जात देखेंगे और ना सिर्फ खुद सीखेंगे, हम औरों को भी ये बता सके भाई यीशु खुदा का बेटा है, बाइबल कह रही है, अंजील कह रही है। अंजील का मतलब ही खुशखबरी है। तो अंजील की सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि यीशु खुदा का बेटा है, यही खुशखबरी है। सो खुदावंद के कलाम में से मेरे साथ मिलकर निकालिए मत्ती की इंजील 3 बाब, मत्ती की इंजील 3 बाब, उसकी 17वीं आयत। यहां कुछ वाकया यूं है कि यीशु मसीह यूहन्ना से बपतिस्मा लेने गया है और जब बपतिस्मा लेकर पानी से बाहर आया है तो लिखा है उसके लिए आसमान खुल गया, उसके लिए आसमान खुल गया और उसने खुदा के रूह को कबूतर की मानिंद उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और इसके बाद 17वीं आयत आप में से को पढ़े, क्या लिखा है? और देखो आसमान से आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। हाँ जी, क्या सुना आपने? कि देखो आसमान से आवाज आई कि ये मेरा प्यारा क्या है? बेटा है। कहने वाला कौन है? खुदा है। खुदा ने खुद कहा कि ये मेरा प्यारा क्या है जी? बेटा है। उसने उसकी निस्बत अपने साथ जोड़ी है कि ये मेरा प्यारा क्या है जी? बेटा है, जिससे मैं खुश हूं। और एक और हवाला देखिए 8वां बाब, मत्ती की इंजील का 8वां बाब, उसकी 28वीं और 29वीं आयत जी। जब वो उस पार गदरीनियों के एक मुल्क में पहुंचा तो 2 आदमी जिनमें बदबू कब्रों से निकलकर उससे मिले। वो ऐसे धुंध मिजाज से थे कि कोई उस रास्ता से गुजर नहीं सकता था। और देखो उन्होंने चिल्लाकर कहा, किन्होंने कहा जी? जिनमें बदरूहें थी। ऐ खुदा के बेटे हमें तुझसे क्या काम है? क्या काम है? और असल में ये बदरूहें कह रही हैं। और पालूस रसूल ने अपने खतूत के अंदर इस बात को खोला है कि ईमान की क्या बात है। ईमान तो शयातीन भी रखते हैं। शयातीन क्या? शैतान की जमा। शयातीन भी ईमान रखते हैं, शैतान भी ईमान रखता है, बदरूहें भी ईमान रखती हैं, गिराए हुए फरिश्ते भी ईमान रखते हैं। क्या ईमान रखते हैं? कि यीशु खुदा का क्या है जी? और यहां कहा गया, ऐ हक ताला के बेटे, ऐ खुदा के बेटे, हमें तुझसे क्या काम है? और अगर आप वापस आए मत्ती की इंजील 4 बाब में, तो वहां पर इन बदरूहों का लीडर क्या कहता है? अगर आप 6ठी आयत पढ़ें तो वहां पर वो कहता है, पढ़े जी कोई। अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने तेरी नीचे गिरा दे। हाँ, गोया शैतान भी ईमान रखता है कि यीशु खुदा का क्या है जी? बेटा है। अगर आप दूसरी आयत पढ़ें, बल्कि तीसरी, तो वहां पर भी लिखा है, और आसमानी वाले ने पास आकर उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो करवा के ये
ये पत्थर रोटियां बन जाएं। ये पत्थर क्या बन जाए जी? रोटियां बन जाए। देखिए शैतान कह रहा है कि तू खुदा का क्या है जी? बेटा है। और उस बेटे को कह रहा है तू प्रूव कर जी तू खुदा का बेटा है। गोया उसके ज़हन में तो है कि ये खुदा का बेटा है। एक और हवाला देखें, लूका की इंजील पहला बाब 31 और 32 आयत। लूका की इंजील पहला बाब। और देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा ये कौन सा वाक्य है? जब फरिश्ता मरियम के पास आया और उसका नाम यीशु रखना। और आकर उसको पैगाम देता है। क्या पैगाम देता है? कि ऐ मरियम खौफ न कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। और देख तू हामला होगी और तेरे क्या होगा? बेटा होगा। तेरे बेटा होगा। मरियम को कह रहा तेरे बेटा होगा। और क्या होगा? उसका नाम यीशु नाम। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। का बेटा कहलाएगा। जैसे मत्ती की इंजील की शहादत है कि यीशु खुदा का बेटा है, ऐसे लूका भी शहादत देती है इंजील क्या कि यीशु खुदा का क्या है जी? बेटा है। आगे यूहन्ना की इंजील 11वां बाब। यूहन्ना की गवाही सुने, उसने क्या लिखा? यूहन्ना की इंजील पुकार पुकार कर कह रही है, बल्कि ये पूरी इंजील जो है ये यीशु को खुदा का बेटा पेश करती है। 11वां बाब उसकी 24वीं आयत से पढ़ेंगे। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि क़यामत में आखिरी दिन जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, क़यामत और जिंदगी तो मैं हूँ। जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा। और जो कोई जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है वो अब तक कभी ना मरेगा। क्या तू इस पर ईमान रखती है? उसने उससे कहा, हाँ ए खुदावंद, मैं ईमान ला चुकी हूँ कि खुदा का बेटा मसीह जो दुनिया में आने वाला था तू ही है। हाँ, मैं ईमान रखती हूँ कि खुदा का बेटा मसीह जो दुनिया में क्या था? आने वाला था, तू ही है। मार्था ने कहा। मार्था कौन थी? मार्था लाजर की बहन थी। और ये उस वक्त उसने कहा जब यीशु लाजर के मरने के बाद चौथे दिन उनके घर में गया। बहन परेशान है। उस परेशानी के आलम में देखें वो इस बात पर यकीन रखती है कि क़यामत के दिन उसका भाई जिंदा हो जाएगा। लेकिन यीशु ने उसको नया भेद दिया। और भेद क्या दिया? कि जो मुझ पर ईमान रखता है वो मर भी जाए तो भी क्या होगा? जिंदा रहेगा। और उसका ईमान ताजा हो गया। और उसने कहा कि मैं ईमान रखती हूँ और ला चुकी हूँ कि खुदा का बेटा मसीह जो दुनिया में आने वाला था तू ही है। गोया यूहन्ना की इंजील ये ऐलान करती है कि यीशु खुदा का क्या है जी? बेटा। ऐसा बेटा जो क्या करता है जी? जो मसा शुदा है। और यही इंजील 3रा बाब 16वीं आयत जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर एक और जबरदस्त सच्चाई बयान करती है। क्या? ये सबको ज़बानी भी आती है। 3 बाब की 16 आयत पढ़े जी। आती है। और खुदा ने ऐसी मोहब्बत रखी उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। यीशु खुदा का बेटा है। यीशु खुदा का बेटा मसीह है। यीशु खुदा का बेटा जो है वो इकलौता है। और याद रखें ना जमीन पर ना आसमान पर ना जमीन के नीचे के इलाकों में कोई दूसरा बेटा नहीं, सिर्फ एक ही बेटा है और वो खुदावंद यीशु
जिस पर हम ईमान लाते हैं, तो हम बता सकते हैं दुनिया को कि हम नहीं कह रहे, बाइबल कह रही है। बाइबल क्या कहती है कि यीशु खुदा का क्या है जी, बेटा है। मत्ती की इंजील 16 बाब की 16 आयत पढ़े जरा, वहां पर मत्ती एक और वाक्य का जिक्र करता है। शमौन पतरस ने जवाब में कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। कौन कह रहा है जी? शमौन पतरस, जो 12 शिगिर्दों में से एक मोतबर शिगिर्द है, और मत्ती ने उसी बयान को कलमबंद किया है और अपनी इंजील के अंदर लिख दिया है। और ये सच्चा वाक्य है, झूठ नहीं है, कि यीशु ने अपने शिगिर्दों से पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं। और जब हम 13वीं आयत से पढ़ते हैं तो हमें पूरा वाक्य नजर आ जाता है कि यीशु शिगिर्दों से पूछता है, ऐसे इलाका में जो कैसरिया फिलिप्पी है, उस इलाका के अंदर पूछता है कि लोग इब्ने आदम की बाबत क्या कहते हैं। तो उन्होंने कहा, बाज यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला समझते हैं, बाज एलिया समझते हैं, बाज यर्मिया समझते हैं, बाज नबियों में से कोई नबी समझते हैं। आज भी अगर आप देखें, दुनिया उसको क्या समझ रही है, दुनिया के अपने अकायद हैं, लेकिन जैसे शिगिर्दों से उसने स्पेसिफिक पूछा, तुम इब्ने आदम की बाबत क्या कहते हो, तो उन्होंने क्या कहा? शमौन पतरस ने, जो शिगिर्दों की नुमाइंदगी करता है, कहता है कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। ना सिर्फ इकलौता है वो, ना सिर्फ मसीह है, बल्कि जिंदा खुदा का बेटा है। जिंदा खुदा का बेटा जिंदा ही होगा, वो मुर्दा नहीं होगा। और इसीलिए आज तारीख ये बताती है कि यीशु मर गया, दफन हुआ, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और जब वो जी उठने वाला है तो फिर मरने का हमेशा तक जिंदा। और लिखा है, जी उठने के बाद वो 40 दिन तक अपने लोगों को दिखाई देता रहा। दिखाई देने के बाद वो आसमान पर चला गया, और इब्रानियों का मुसन्निफ कहता है वो बाप के दाहिने हाथ जाकर बैठ गया। और हम रसूलों के किताब में पढ़ते हैं, वहां से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को जल्द आएगा। कौन आएगा? वही जो खुदा का बेटा है। वही आएगा जिसको खुदा ने जमीन और आसमान का क्या दिया है? कुल इख्तियार दिया है। बाइबल कह रही है, हम नहीं कह रहे, कि यीशु जिंदा खुदा का बेटा क्या है जी? मसीह है। अमाल की किताब 8वां बाब उसकी 27वीं आयत से पढ़ेंगे, और यहां पर भी एक वाक्य है जो फिलिप्पस और हबशी खोजा की मुलाकात है, जो बियाबान के अंदर होती है। और उस वाक्य के अंदर हम देखते हैं कि वो यशायाह नबी का सहीफा पढ़ते हुए जाता है, और जाते जाते फिलिप्पस से जब मुलाकात होती है, तो उस मुलाकात के दौरान फिलिप्पस उससे पूछता है, जो कुछ तू पढ़ता है उसे समझता भी है? वो कहता है, जब तक मुझे कोई हिदायत ना करे ये क्यों कर हो सकता है? फिर फिलिप्पस को दावत देता है, मेरे साथ रथ पर आ बैठ। वो बैठ जाता है, और रास्ते में किताब मुक़द्दस की इबारत जो पढ़ रहा था ये थी कि लोग उसे भेड़ की तरह ज़बह करने को ले गए, और जिस तरह वो अपने बाल कतरने वालों के सामने बेजुबान होता है, उसी तरह वो अपना मुंह नहीं खोलता। उसकी पस्त हाली में उसका इंसाफ ना हुआ, और कौन उसकी नस्ल का हाल बयान करेगा, क्योंकि जमीन पर से उसकी जिंदगी मिटाई जा रही है। और खोजा ने फिलिप्पस से कहा, मैं तेरी मिन्नत करता हूं। मैं तेरी क्या करता हूं? मिन्नत करता हूं। 34वीं आयत है, मैं तेरी मिन्नत करके पूछता हूं कि नबी ये किसके हक में कहता है, अपने या किसी दूसरे के? क्योंकि लिखने वाला तो यशायाह है। उसने पूछा,
क्या यशायाह अपनी बाबत कहता है? बहुत सारे लोग हैं जो यशायाह की बहुत सारी बातों को उसके साथ ही जोड़ते हैं। पिछले दिनों एक शख्स था, वो कहने लगा जी वो जो लिखा ना, देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा। ये असल में यशायाह की बीवी की बात है, लेकिन सदाकत इसमें है कि सदियों से नविश्ते जो कुछ बयान करते थे, ये हैरत वाली बात नहीं है। हाँ? वो यशायाह के साथ जोड़ रहा है उसको और कहता है मैं अभी ढूंढ रहा हूं ये है कौन। अच्छा तो ढूंढता रहा, जिन्होंने ढूंढा था उन्होंने ढूंढ लिया। वो बता रहे हैं कि यीशु मसीह के पैदा होने से 750 साल पहले यशायाह कहता है देखो एक कुंवारी क्या होगी, और दुनिया की सारी कलीसिया मुत्तफिक है, लेकिन वो ईमानदार अपनी ही डॉक्ट्राइन लेकर उभर रहा है। कहते हैं मैं भी तहकीक कर रहा हूं। जिस बात को लोगों ने सिखा दिया, पहले से प्रूव कर दिया, वो उसकी अभी तहकीक कर रहे हैं। और ऐसे उस्तादों से हमें बचने की जरूरत है जो कलीसियाओं को गलत तरफ लेकर जाते हैं, शकूक पैदा करते हैं। देखिए हमने शैतान का वाला पढ़ा ना, वो आया इकरार तो करता है यीशु खुदा का बेटा है, लेकिन साथ क्या कहता है? अगर। तो अगर मगर नहीं पढ़ना, बाइबल की बात जब है लिखा है। और आज का ये मैसेज ये है कि बाइबल जब कह रही है तो हमें किसी शक की कोई गुंजाइश बाकी नहीं है। आमीन। हम शक में नहीं पड़े, बाइबल कह रही है। और देखिए क्या कह रहा है। अब शिखोजा ने पूछा फिलिप्पस से, मैं तेरी मिन्नत करके पूछता हूं नबी किसके हक में कहता है, अपने या किसी दूसरे के? फिलिप्पस ने अपनी जुबान खोलकर उसी नविश्ता से शुरू किया और उसे यीशु की खुशखबरी दी। खुशखबरी दी, बोले खुशखबरी, फिर बोले खुशखबरी। और याद रखें, दुनिया को ये बताना कि यीशु खुदा का बेटा है सबसे बड़ी खुशखबरी है। क्योंकि लिखा है जिसके पास बेटा है उसके पास क्या है? खुशखबरी दी। तो यकीनन फिलिप्पस ने उसको बता दिया होगा कि यीशु कौन है, यीशु खुदा का बेटा है। और इसीलिए आगे चलकर हम पढ़ते हैं, लिखा है और राह में चलते चलते किसी पानी की जगह पर पहुंचे। देखिए बपतिस्मे की तालीम भी दे दी है, यकीनन बताया होगा जब तक तौबा ना करे, ईमान ना लाए, बपतिस्मा ना ले तो निजात नहीं पा सकता। बताया होगा ईमान किस पर लाना है, यीशु पर लाना है। यीशु कौन है? यीशु खुदा का क्या है जी? बेटा है। और लिखा है वो कहता है पानी मौजूद है, अब मुझे बपतिस्मा लेने से कौन सी चीज रोकती है? बपतिस्मा लेने से कौन सी चीज रोकती है? बस फिलिप्पस ने कहा तुझे रोकती है कि चीज क्या? अगर तू दिलो जान से ईमान लाए तो क्या ले सकता है? ये बड़ी रुकावट है। बोले हालेलुया। इस रुकावट को हम दूर करेंगे। बोले 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 इस रुकावट को हम दूर करेंगे। खाली हालेलुया नहीं करना, हालेलुया। इस रुकावट को हम दूर करेंगे। और जिन्होंने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया वो इकरार करके, दिलो जान से इकरार करके कि यीशु खुदा का क्या है जी? बेटा है, इकरार करके क्या ले ले? बपतिस्मा ले ले। और याद रखें कोई बपतिस्मा नहीं है जब तक कोई इकरार नहीं करता कि यीशु खुदा का, जब तक कोई ईमान नहीं लाता कि यीशु खुदा का बेटा है। तो बाइबल में लिखा है कि हबशी खोजा ने इकरार किया, उसने जवाब में कहा मैं क्या लाता हूं? मैं क्या लाता हूं? ईमान लाता हूं। क्या ईमान लाता हूं? शाबाश, यीशु खुदा का बेटा है। क्या ईमान लाता हूं? यीशु मसीह खुदा का मैं ईमान लाता हूं। और उसके बाद फिर क्या हुआ जी?
बस उसने रथ को खड़ा करने का हुक्म दिया और फिलिप्पस और खोजा दोनों पानी में उतर पड़े और उसने उसको क्या दे दिया। आज कई बार हम खादम के क्या करते हैं, इकरार नहीं लोगों का देखते। हो सकता है यीशु को खुदा का बेटा नहीं मान रहे और हम बपतिस्मे दिए जा रहे हैं। आज इतने बपतिस्मे हो गए, जितने और मैं आपको बताऊं, बहुत सारी कलीसियाएं इस बात में बड़ी मजबूत हैं। वो उस वक्त तक बपतिस्मा नहीं देती जब तक कोई ईमान न लाए कि यीशु खुदा का, जब तक कोई ईमान न लाए। इन्होंने लाके पीछे तो आगे पढ़ें जी। यूहन्ना, पहला यूहन्ना का खत, उसका 4वां बाब 15वीं आयत। पहले यूहन्ना का खत 4वां बाब 15वीं आयत। जो कोई इकरार करता है कि यीशु खुदा का बेटा है, खुदा उसमें रहता है और वो खुदा में। आमीन। क्या होता है जी? जो कोई इकरार करता है कि यीशु खुदा का क्या है, बेटा है। जो कोई इकरार करता है कि यीशु खुदा का क्या है, बेटा है, खुदा उसमें क्या करता है जी, रहता है। आज बहुत सारे गाने लोग गाते हैं, खुदा है मोहब्बत, मोहब्बत है खुदा, लेकिन गाने की बात नहीं है। आजकल एक ड्रामा चल रहा है, बड़ा अरूज पर है, शायद अगली की इस्ताखरी हो, बड़ा देख रहे हैं लोग। और मैं आपको बताऊं, पिछली एक कन्वेंशन हुई, मैंने उसमें बताया कि मोहब्बत क्या है। मोहब्बत के 10 रूट हैं जो हमें मिलते हैं दुनिया के अंदर। 10 अक़साम हैं, 10 अक़साम है। उनमें से एक मोहब्बत वो है जो खुदा की मोहब्बत है। बाकी 9 आप YouTube पर जाकर देख सकते हो, मेरा मैसेज है। बाकी 9 क्या है? बाकी वो है जो खुदा की मोहब्बत नहीं इधर उधर घूम रही है, यारी दोस्तियों वाली मोहब्बत, भाइयों भाइयों वाली मोहब्बत, जो कई बार जायदाद तक तो ठीक रहती है, जायदाद आज तो खराब। तो बहुत सारी मोहब्बतों के रुख हैं, मोहब्बत के बहुत सारे रुख, लेकिन उत्तम मोहब्बत वो है जो कोई मोहब्बत रखता है, जो कोई इकरार करता है। मोहब्बत असल में ये है कि इकरार करे कि यीशु खुदा का क्या है जी, तो जो ये इकरार नहीं करता उसमें खुदा नहीं रहता। हमने सुना क्या? 4 बाब की 15वीं आयत में लिखा है, जो कोई इकरार करता है कि यीशु खुदा का बेटा है, खुदा उसमें रहता है और वो खुदा में। तो हम खुदा में रहते हैं। खुदा माफ करे। हालेलुया। बोले हालेलुया, फिर बोले हालेलुया, जोर से बोले, तालियां बजाकर बोले हालेलुया। बच्चों सुनो, आप भी सुनो, चुप करके सुनो, चुप करके सुनो, ठीक है? बहुत ही खास मजमून है और मैं सोच रहा था कि हम वीडियो बनाकर जो है ना लोगों को दें, लेकिन लगता है कि नहीं जा सकता, मुश्किल है। क्योंकि वो कहेंगे एक इहो जिहा मैसेज जिते जाने नहीं होंदे। और मैं आपको बताऊं, जाने से जाने में कई सियाने भी सुन के रोणगे, हाँ जी, रोणगे, केड़ी सच्चाई का अच्छा। आज तक हम हवा में कई बार मुक्के मारते हैं, तो मैं बताऊं कलाम के बगैर हम किसी को प्रूव नहीं कर सकते। आमीन। हमारा हथियार क्या है? खुदा का कलाम। इसलिए मैं ये कहूँगा, अगर आप पढ़े लिखे हो तो आपके हाथ में ये तलवार होनी चाहिए। मसीहों की तलवार क्या है? खुदा का कलाम।
ये तलवार हमारे हाथ में होनी चाहिए, फिर आप जंग कर सकते हैं। और ये तलवार ऐसी है, दो धारी तलवार है। दुनिया की तलवारों के एक तरफ मुंह होता है, इसके दो तरफ है। क्या करती है? सुनाने वाले पर भी असर करती है और सुनने वालों पर भी क्या करती है? दो धारी से मुराद यही है कि ये सुनने वालों पर सिर्फ असर नहीं करती, बल्कि सुनाने वाले पर भी असर दिखाती है। बंदा बच नहीं सकता सुनाने वाला के बस मैं सुनाना ही अमूल शमूल को नहीं, सब बराबर। फिर इसके अंदर इतनी ताकत है कि ये नस नस और गूदे गूदे में से क्या करती है? गुजर जाती है, बंद बंद में से गुजर जाती है। और ईसाया ने कहा, खुदावंद फरमाता है कि मेरा कलाम कभी बेतासीर वापस नहीं आएगा। तो देखें यूहन्ना ने अपने खत के अंदर क्या कहा, चौथे बाब की 15वीं आयत में, जो कोई इकरार करता है कि यीशु खुदा का बेटा है, खुदा उसमें रहता है, डेरा डालता है खुदा उसमें, और वो खुदा में। आगे देखें इसी खत के अंदर 5वें बाब की 10वीं आयत से हम पढ़ेंगे जी। जो खुदा के बेटे पर ईमान रखता है, ठीक है। वो अपने आप में गवाही रखता है। जो खुदा के बेटे पर ईमान रखता है वो छुपता नहीं, फिर क्या रखता है? अपने आप में गवाही रखता है। और गवाही क्या रखता है? कई बार कहना कोई है गवाही, तो गवाही क्या होती है? मेरे सिर की पीड़ सी वो ठीक हो गई, मेरी कमर में दर्द था वो ठीक हो गया। ये भी गवाही ठीक है, अपनी जगह पर अच्छी गवाही है, क्योंकि उसमें भी हम बताते हैं कि खुदावंद ने काम किया है। लेकिन इससे भी बढ़कर गवाही है जो बड़ी स्पेसिफिक है, खास है, और उसमें क्या है? हम बताते हैं, सुनो, मैं ईमान रखता हूं, मैं ईमान रखती हूं कि यीशु खुदा का क्या है? बेटा। ये गवाही। बंदा आंखें, मेरी आंखें जो है वो ठीक हो गई, मैं अंधा था बीना हो गया, तो उसको पूछे क्या तू ईमान रखता है खुदा यीशु खुदा का बेटा? आंखें नहीं, तो फिर अखा क्यों नहीं खुली? फिर गवाही क्या है? लिखा है जो खुदा के बेटे पर ईमान रखता है वो अपने आप में क्या रखता है? और आगे पढ़े कोई, जिसने खुदा पर यकीन नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया। हाँ, जब हम ईमान रखते हैं तो यकीन नहीं किया, जो नहीं ईमान रखता वो असल में अपने आप को झूठा नहीं ठहराता, बल्कि किसको? खुदा को। जिसने यकीन नहीं किया, ईमान नहीं रखा, उसने उसे झूठा ठहराया, क्योंकि वो उस गवाही पर जो खुदा ने अपने बेटे के हक में दी है ईमान नहीं लाया। और वो गवाही ये है कि खुदा ने हमें हमेशा की जिंदगी बख्शी, और ये जिंदगी उसके बेटे में है। और आगे लिखा है जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास जिंदगी भी नहीं। तो बेटा किसके पास है? जो इकरार करता है। जब खुदा उसमें रहता है, और यीशु ने एक प्रकाशवा दिया अपनी कलीसिया को जाने से पहले, उसने कहा मुझे याद करोगे ना तो मैं और मेरा बाप आया करेंगे। यीशु अकेला नहीं आता, बल्कि बाप भी साथ आता है। और याद रखें, जहां खुदा बाप है वहां खुदा बेटा है। दुनिया ने क्या किया? अपने इल्म से क्या किया? कभी बेटे को निकाल देते हैं, कभी बाप को निकाल देते हैं। लेकिन मैं ये कहूंगा, बेटा बेटा है, बाप बाप है। आमीन। अगर बाप का इकरार ना हो तो बेटे का इकरार नहीं हो सकता, अगर बेटे का इकरार ना हो तो बाप का इकरार नहीं हो सकता, क्योंकि जब बेटा कहा जाता है तो यकीनन वो बाप रखता है। आमीन। जो
गवाही ये देता है उसके पास जिंदगी है, और लिखा है जिंदगी उसके पास है जिसके पास बेटा है। और आगे देखें मुकाशों की किताब क्या कहती है। मुकाशों की किताब आखिरी किताब है, इसका दूसरा बाब 18वीं आयत, दूसरे बाब की 18वीं आयत क्या कहती है। हालेलुया। और खवातीरा की किली मानित और पाँव खालिश पीतल की मानित है। ये फरमाता है आमीन। क्या सूरत बताई जी उसकी। लिखा है खुदा का बेटा। कौन जी? खुदा का बेटा। जैसे मत्ती ने कहा, लूका ने कहा, यूहन्ना ने इंजील में कहा, यूहन्ना ने खतूत में कहा, अमाल की कलीसिया को खत लिखते हुए लूका ने कहा, और फिर लूका ने अपनी इंजील के अंदर भी कहा। वैसे ही मुकाशवा के अंदर आखिरी किताब में भी कहा गया, लिखने वाले को कहा गया कि उनको लिख। क्या लिख दी? कि खुदा का बेटा लिख। और मैं ये कहूंगा हमारे दिलों की तख्तियों पर लिखा जाना चाहिए कि यीशु खुदा का। ये नक्श खत्म नहीं होना चाहिए। यीशु खुदा का बेटा है, बल्कि मैं कहूंगा ऐसा ऐलान होना चाहिए कि हमारी आने वाली हजारों पुश्तें भी इकरार करें कि यीशु खुदा का बेटा है। खुदा का बेटा किसकी मानित? जिसकी आंखें आग के शोला की, आग का शोला नहीं बल्कि आग के शोले की। किसी शायर ने कहा था, उसे तशबीह का दूं आसरा क्या, वो खुद एक चांद है फिर चांद सा क्या। हम तशबीहें दे सकते हैं आग के शोले की मानिंद। मानिंद कह रहे हैं, वो तो इससे भी बढ़कर है। आमीन। आग का शोला क्या होता है? उसके अंदर क्या हरारत, क्या शिद्दत होगी, क्या आग होगी, उससे भी बड़ा, क्योंकि बनाने वाला हमेशा चीजों से क्या होता है? बड़ा होता है। कलाम ये कहता है, यूहन्ना ने कहा कि वो खुदा के साथ था, सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई। आग के शोला की मानिंद। मानिंद, मानिंद का मतलब समझते हैं? जैसी आग है, आग का शोला है, वैसा। आगे पाँव खालिस पीतल की मानिंद। खालिस पीतल की नहीं बल्कि उसकी मानिंद, उसकी मानिंद कहे जा रहे हैं। और अगर आप 13वीं आयत पढ़े ना पहले बाब की, तो वहां पर भी ऐसे अल्फाज हैं, और उन चिरागदानों के बीच में आदमजात सा एक शख्स देखा। आदमजात सा एक शख्स देखा जो पांव तक का जामा पहने और सोने का सीना पर बांधे हुए था। उसका सर और बाल सफेद ऊन, बल्कि किसकी मानिंद? बर्फ की मानिंद। तशबीहें देकर हम समझा सकते हैं खुदा का बेटा कैसा है। दुनिया को ऐसे समझाना पड़ेगा, जो चीजें दुनिया ने देखी हैं उसी से समझाना पड़ेगा। हम कई बार यीशु को खुदा का बेटा प्रूव करने के लिए कई बार दुनिया की चीजों का सहारा लेते हैं। बार बार हम समझाते हैं जी, जैसे पानी की हालतें हैं, क्या जी? बर्फ है, पानी है, भाप है, तो ये खुदा की सूरत है। लेकिन मैं ये कहूंगा, अगर हम उसको खुदा में से खुदा ना माने, नूर में से नूर ना माने, अगर हम बाइबल के इस प्रूफ को, इस सबूत को ना माने, तो मैं समझता हूं इससे बड़ी बदबख्ती कोई नहीं। हमारे पास ये सबूत है, ये बाइबल कह रही है। क्या कह रही है जी? कि यीशु खुदा का बेटा है। आमीन। ही इज अ सन ऑफ गॉड। तो ये पहला सबूत आज मैंने आपको आपके सामने रखा है। जिंदगी रही तो हम अगले संडे को इससे आगे बढ़ेंगे और सबूत हम तलाश करेंगे, कौन कौन से सबूत हैं जो साबित करते हैं कि यीशु खुदा का बेटा है। आइए अपनी आंखें बंद करें।
अपने सर को झुकाएं। हालेलुया।